Hi, I welcome you all to my YouTube channel Current Car Affairs. Here I'll be discussing latest and most relevant news updates from Press Information Bureau. मैं यहाँ पर PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। आज है 7 अप्रैल और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल 1948 इस दिन WHO दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इस दिन को याद रखने के लिए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इट ऑल्सो एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल communities and government in order to ensure that everybody has access to good or quality health care. This year marks the 75th founding year of WHO और इस साल की थीम है Health for All. First news is related to Rajya Sabha and its session. So recently Rajya Sabha has concluded its 259th session और वो शुरू हुई थी जनवरी 31st लास्ट ईयर 2022 से और अभी वो कंक्लूड हुई है कल। की हाइलाइट्स है कि इसी सेशन में हमारा बजट प्रेजेंट हुआ था इस ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर के। देन जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उन्होंने जॉइंट सिटिंग ली थी लोकसभा एंड राज्यसभा की और टोटल इसमें 27 सिटिंग्स थी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसमें उन्होंने पार्लियामेंट के सिग्निफिकेंस को बताते हुए कह रहे हैं that parliament is the watchdog of democracy and people are our supreme masters। और उन्होंने पार्लियामेंट को एक फोरम कहा है that is for discussion, deliberation, debate, decision for the holistic welfare of the people। So people are at center of it। Having said that, he also made certain observations जैसे कि disorder in parliament is turning out to be a new order, which is very true। We have seen in this session of Rajya Sabha, also in the previous sessions जो कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अनरूली बिहेवियर के कारण भी बहुत सारे डिसरप्शन क्रिएट हुए हैं। देन देयर इज अ वेपनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वेयर यू यूज योर पॉलिटिकल पावर और एनी इंस्टीट्यूशन to advance your partisan interest at the expense of democratic values। Then poor attendance, many MPs are frequently absent from their parliamentary sessions and because of that कई बार important legislation delayed हो जाते हैं, postpone हो जाते हैं। He also talked about productivity of the session। So जो budget session का पहला part था at that time it was around 56.3%, but in second part it came down to 6.4%। So this productivity fell like anything। So cumulatively house की productivity सिर्फ 24.4% ही रह गई थी। Then and ये जो disruption create होता है because of some irrational behavior of MPs जिससे कि हमारा जो 330 minutes of its times got wasted। So जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे उन्होंने इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है and even requested member of parliaments to ponder over such dismal performance of the houses and find a way out। Next news is related to monetary policy statement। So while delivering the bi-monthly monetary policy statement, RBI गवर्नर जो कि प्रेजेंटली शक्तिकांता दास हैं उन्होंने जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा है एट 6.50%। ओके एंड दिस इज बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो अभी अबव द टारगेट है एंड इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट risk the level of prices right now। at the same time we have to accommodate the growth rate। also जो monetary policy committee है उन्होंने decide किया है to focus on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively align with the target while supporting growth। तो ये जो withdrawal of accommodation है इसका मतलब होता है to reduce the monetary stimulus in the economy। ठीक है और वो इसलिए करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता रहे। ऑल्सो आरबीआई गवर्नर ने हाईलाइट किया है कि इवन दो वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन और देयर इज अ ह्यूज वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस इन द मार्केट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जो इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दे हैव रिमेन resilient
to such adversity. Also जो हमारा GDP growth का projection है वो है 6.5% for the financial year of 2023 to 2024, which is healthy. थोड़ा हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में. So it is a 6-member committee which is responsible for framing the monetary policy. So monetary policy क्या होता है? So it is a tool in the hands of central government by which it can manage the supply of money in economy or the credit in the economy with the aim of achieving certain economic goals. कैसे वो करते हैं? तो by using these tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate और उसके अलावा open market operations, reserve requirement. So these are some of the tools that can be used to manage this monetary policy. So this 6-member committee है. तो ये 6 member में 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 RBI के होते हैं एंड इंक्लूडिंग गवर्नर. और जो RBI के जो गवर्नर है वो इसको हेड करते हैं. और इसका मेजर एम क्या है? टू फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द. और ये करता क्या है? सो इट फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द RBI. ठीक है. इसे फर्स्ट टाइम उर्जित पटेल कमेटी ने प्रपोज किया था और अकॉर्डिंगली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ MPC वाज कंडक्टेड ऑन 3 अक्टूबर 2016 को इन मुंबई. ठीक है. इट इज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 45ZB. इसको आप याद रखेंगे, 45ZB ऑफ द RBI एक्ट 1934. इसका मैंडेट हमने अभी पढ़ा है, टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. ठीक है. विच here you can see inflation target. So targeted consumer price index inflation rate is 4% with 2% and 6% as lower and upper tolerance respectively. ठीक है. So this is between 2% to 6% and 4% is ideal. मीटिंग कितने बार होती है? सो इट टेक्स प्लेस एटलीस्ट 4 टाइम अ ईयर. और जो RBI के गवर्नर हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं और इसके जो मेंबर्स हैं उनके टर्म होते हैं 4 इयर्स के लिए. जो इसका डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी बेसिस पे ली जाती है, जिसमें गवर्नर को कास्टिंग वोट भी दिया जाता है इन केस ऑफ अ टाई. ओके. एंड तो ये जो MPC है इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसके हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे. नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, दैट इज बायोटेक किसान स्कीम. जो न्यूज में क्यों है? सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज ओवर 1,60,000 फार्मर्स हैव रिसीव्ड बेनिफिट्स ड्यूरिंग बायोटेक किसान स्कीम इन लास्ट 1 ईयर. बायोटेक. सो ये जो बायोटेक किसान स्कीम है उसको बोलते हैं बायोटेक किसान इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क. ठीक है. इसी को बोलते हैं बायोटेक किसान. इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड इसका पर्पस क्या है? टू कनेक्ट फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड साइंस इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री. और इसका पर्पस क्या है? टू कनेक्ट फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड साइंस इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. सो इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मर्स, scientists and science institution where they will help the farmers with latest technology or latest innovation in order to increase their productivity or doubling their income. It is implemented in 15 agroclimatic zones. ठीक है. तो इंडिया में 15 agroclimatic zones होते हैं. So agroclimatic zone किसको बोलते हैं? So it is a geographical region characterized by unique combination of climate, okay, और soil, landform, ठीक है, और other environmental factor that influences the local agricultural productivity. और इसके objectives देखें, to it counsel or provide solution to the farmers on the problem related to water, soil, seed and marketing. सो ये एरिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन देते हैं फार्मर को बेस्ड ऑन कि किस टाइप का वाटर उनको प्रोवाइड है और कितने क्वांटिटी में वाटर उनको प्रोवाइडेड है, किस टाइप का सॉइल है, सीड किस टाइप का उन्होंने यूज़ किया था. तो काफ़ी एरिया स्पेसिफिक and very personalized solutions are given to the farmers. Then it also connect farmers to best practices, best global practices in the world. Then training workshop दिए जाते हैं farmers को which will be held in India and other countries. So वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको दुनिया भर के जो फार्मर्स हैं और उनके क्या क्या टेक्नोलॉजी से वो लोग अपने
प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, वो सबका उनको वर्कशॉप दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और फार्मर्स, वो दोनों को एक पार्टनर्स की तरह दिखाया गया है, हु आर रेडी टू हेल्प ईच अदर इन बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स सीवीआई मैपिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? सो दिस इन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोइस, उन्होंने एक कैरी आउट किया है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स मैपिंग। ठीक है, तो ये कौन करती है? इनकोइस करती है। इनकोइस के बारे में अगर देखें तो ये क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसको आप याद रखेंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 और हेडक्वार्टर क्या है? हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड best possible ocean information and advisory services to government agencies, society, industry and scientific community। ठीक है, तो ये कुछ ओशन के इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन करते हैं और बेस्ड ऑन दैट वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, सोसाइटीज को, इंडस्ट्रीज को अबाउट ओशन और कोस्टल एरियाज और द कोस्टल वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, और ये देन जो ये इनकोइस है, इट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन टू आईओसी ऑफ यूनेस्को। दिस ये क्या है? सो इट इज इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। ठीक है, ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन ओशन ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। सो इट इज अ टूल यूज टू असेस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ कोस्टल रीजन। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस कोस्टल रीजन, आपको पता है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इरोजन एंड फ्लडिंग इन दीज एरियाज। और उसकी वजह से देर इज़ अ चांस ऑफ sea level rise along the Indian coast, and it also takes into account a variety of physical, environmental, socio-economic factors that influences a region's vulnerability to coastal hazards. Then these are some of the important parameters on which we are assessing the vulnerabilities of uh, these coastal areas, जैसे कि shoreline change rate, sea level change rate, coastal elevation, coastal slope, ठीक है, then coastal geomorphology, significant wave height and tidal range. So these are some of the 7 input parameters based on which we will assess the coastal vulnerabilities. Then Indian coastline vulnerabilities को देखें, so you can see this is the coastline of India. This is the mainland coastline. ठीक है, और ये कितने हैं? ये around 7,000 kilometers. So India has a 6,907 kilometers of long coastline of the mainland. Then it has been analyzed for the period from 1990 to 2018. So it has been analyzed by whom? So it is National Center for Coastal Research. ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इसने इसे ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया है फॉर दिस period 1990 से 2018, and it has noted that 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion and 26.9% is of accreting nature, ठीक है, और growing nature, and the remaining 39.5% is of stable. इसके अलावा आप देखेंगे तो देयर आर अराउंड 250 मिलियन पीपल लिव अलोंग दीज कोस्ट लाइन्स। ठीक है, देन 3600 फिशिंग विलेजेस हैं, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स हैं अलोंग विद कोस्टल इकोसिस्टम। देन कोस्टल इकोसिस्टम विथ लैक्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना and aquatic ecosystem is present here. So अगर ये coastline को थोड़ा सा भी threat होगा, so it will be a threat on all these people and other living beings. इसी की बात करते हुए जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दे हैव प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन मिटिगेशन एंड रिहैबिलिटेशन मेजर फॉर पीपल डिस्प्लेस्ड बाय coastal or river erosion. And then there is a national assessment of shoreline changes along Indian coast to implement the shoreline protection measures. इसके अलावा देर इज़ अ कोस्टल रेगुलेशन जोन जो रेस्ट्रिक्ट करता है और समटाइम्स प्रोहिबिट करता है एनी कंस्ट्रक्शन और एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच इज़ detrimental to coastal areas. Then mangroves conservation that can help stabilize shorelines
or protect the coastal communities against any cyclones or any other disasters. So एक case study भी है अंडमान एंड निकोबार की that these mangroves kind of saved those areas against the adverse effect of tsunami in 2004. Then beach nourishment, you can say coral reef conservation, इसके अलावा सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट और इको टूरिज्म. These are some of the steps that can be taken in order to protect the Indian shorelines. Also, it requires a concerted effort from all the stakeholders like local communities हो गए और private organizations हो गए, fishing communities हो गए, इन सब के collaboration, sharing of knowledge, traditional knowledge and political will help protect these Indian coastline. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जीआई टैग फॉर लद्दाख्स वुड कार्विंग. सो ये न्यूज़ में क्यों है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस अबाउट जीआई टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लद्दाख वुड कार्विंग विच इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड फाइनली carved. It is mostly concerted in Vanla and Joglamsar district of Leh. Then this craft has a distinct culture and religious influence. और ये जो carving जो है ना वो is done on folding tables और cupboard में कर सकते हैं या फिर wooden pot और ritual bowls. Also they employ a special tool box इस carving को करने के लिए जिसको हम बोलते हैं zagham. Now here are some of the honorable mentions. So एक integrated terminal building बनी है चेन्नई एयरपोर्ट में which will help boost connectivity and other benefit to the local economy. So there is an integrated terminal building at Chennai airport. Then एक मिसेस दीपाली झावेरी जो कि इंडियन रेसिडेंट है जापान में and मिस्टर ओटवा जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है जोटो फायर स्टेशन for rescuing a man. ठीक है. Then there is a yoga mahotsav which is going to be held on 7th April at Dibrugarh, Assam. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें. I'll see you tomorrow.